So hello everyone. Today we are going to see exercise 7.3, which is based on the area of sector and length of the arc. Okay. So basically, what is area of sector and what is the length of the arc? See, students, both the things are related to circle only. Okay. You everyone know that circle has got 360 degree, right? So basically, when I am saying area of sector, okay. So at that time, what I am considering? I am considering a circle which has certain area. Okay. For example, if I will draw a circle of, I can say, radius O. Okay. If I am drawing a circle with center O. Okay. And I am drawing two points, that is two radius of points which are meeting at A and B respectively. So you can see the region bounded by the curve. So you can see the region bounded by the arc AB is nothing but the minor sector. Basically minor मतलब कौन सा चीज होती है, छोटी चीज होती है, and major means कौन सी चीज होती है, बड़ी चीज होती है. So I can say area of sector का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, that is theta upon 360 इनटू, सिंस एरिया बोला है तो ये सेक्टर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा. सो बेसिकली व्हाट इज माइनर सेक्टर? वी कैन से द रीजन बाउंडेड बाय द टू रेडियी. We can say the region bounded by the two radii. Okay, we can say the region bounded by the two radii, and we can say this as the minor arc and minor arc. It is known as area of minor sector. Is that clear? What I am saying, the region bounded by the two radii, that is OA and OB, and the minor arc means कौन सा, छोटा वाला arc, it is known as minor sector area, or we can say area of a minor sector. So what is minor sector? The region bounded by the two radii and minor arc, it is known as the minor sector. So students, what will be the major sector? इसका ही opposite, that is the region bounded by the two radii and the major arc is known as the area of major sector. अभी major arc कौन सा है इसमें, ये वाला है, right? अगर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते तो x लेते, इसको y लेते. So OAXB is the area of minor sector and OAYB is the area of major sector. So area bounded by the two curves will be equal to OAXB, that is the minor sector area, and OAYB is the major sector area. Is that clear? And if anyone don't know how to calculate it, so simple formula है, that is area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. फॉर एग्जाम्पल अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, अगर मेरे पास एक सर्कल दिया है जिसका मुझे थीटा दिया है 360 डिग्री. अभी देखो स्टूडेंट, थीटा 360 मतलब फॉर्मूला अकॉर्डिंग थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. सो देखो थीटा 360 दिया तो 360 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू, दोनों कट हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा तो एरिया आ जाएगा बेसिकली सर्कल का. Is that clear? अगर आधा होगा तो क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. अभी आधा क्या होता है, इट इज नथिंग बट 180 इनटू पाई आर स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू 1 सा, इट विल बी इक्वल टू 2 सा. सो 1/2 पाई आर स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. इज दैट क्लियर? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट स्टूडेंट. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. या
दिस वाज फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपल है, एरिया पूछा है तो थीटा अपॉन 360 करना है मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर करना है, ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो, राइट। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। अभी देखो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? सिंपल है, लेंथ ऑफ द आर्क, सेम डायग्राम लेता हूं मैं, ओ ए एक्स बी। अभी मुझे लेंथ ऑफ द आर्क मतलब मुझे ए एक्स बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला क्या है? दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस, राइट। थीटा अपॉन 360 into 2 पाई आर, right? Is that clear? Theta upon 360 into 2 pi r. Simple है क्या? That is theta upon 360 into 2 pi r. So students, please take a note of it. So students, please take a note of it. Next we are going to see the relation between area of sector and length of the arc. अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें दिए हैं तो हम लोग उसमें से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है, राइट। दैट इज वी कैन से द रिलेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, स्टूडेंट्स, area of sector and length of arc। बहुत सिंपल है। So what is the area of sector, students? Area of sector is nothing but the length of the arc multiplied by radius divided by 2। So अगर किसी ने पूछा what is the relation between the area of sector and length of the arc, so we can simply write area of sector is nothing but length of the arc, it is nothing but length of the arc multiplied by radius divided by 2, multiplied by radius divided by 2। Is that clear? अगर किसी ने पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, या फिर लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, रेडियस निकालना है, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क multiply by radius divided by 2। Is that clear? So students, let's please take a note of it. Sorry. Now we will be starting with the exercise without wasting time. Okay. So let's start with the exercise for student। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। We'll start with exercise 7.3, बड़ा एक्सरसाइज है 7.3, ठीक है। दैट इज प्रैक्टिस सेट 7.3, practice set 7.3। So what is given in the question? That is radius of the circle is 10 centimeter, student. What they have given? Radius of the circle is 10 centimeter. Measure of an arc of a circle is 54 degree. Find the area of sector which is associated with the arc, and pi का value they have said to take 3.14, right? So देखो students, what is given in the question, that they have given कि radius of the circle, that is r की value they have given as 10 centimeter, okay, and theta, that is measure of an arc of a circle, that is theta they have given 54 degree, and area we have calculated, pi की value they have set to put 3.14, and they have said to find the area of the sector. So as student we know what is the area of sector. From solution I will write here, area of sector, student, is nothing but area of sector is nothing but theta by 360, that is theta upon 360 multiply by pi r square। लेंथ ऑफ द आर्क आएगा तो 2 pi r लेना है, और अगर एरिया आएगा तो क्या लेना है,
पाई आर स्क्वायर लेना है। सो थीटा की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स 54 डिग्री दी है। कितनी दी है 54 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना दिया है 10 का स्क्वायर। सो यहाँ पे थोड़ा मैथ्स अच्छे से अपने को आना चाहिए कैलकुलेशन जिसको हम लोग गणित बोलते हैं राइट। 3.1 अभी 10 स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 into 10 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ 10 into 10 लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट करूंगा। मेरा यहाँ से 1 0 गया और 1 0 गया। अभी ये दोनों भी 9 के टेबल में जाते कैसे जाते 9 6 54 एंड 9 4 36 राइट। सो अभी देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ फिर से ये जाएगा 2 के टेबल में 2 एंड 3 और एक बार ये फिर से जाएगा 2 के टेबल में दैट इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10। So I am left out with 3 multiplied by 3.14 multiplied by 5. So we will left out with 3 5 कितना आता है स्टूडेंट 15 आता है multiply by 3.14। अभी 3.14 को स्टूडेंट्स में मल्टीप्लाई करूंगा 15 से। So 5 4 20 2 कैरी 5 1 5 6 7 5 3 15 1 4 4 1 3 सो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 4 7 कितना आ जाएगा 11 1 कैरी ये कितना आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4। 2 पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट स्विच किया तो मेरी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी 47.10। सिंस एरिया इसलिए यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। सो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके 47.10 centimeter square. So while writing the final answer you should write down the area of sector for given question is equal to 47.10 centimeter square. So students please take a note of it. Then we will proceed with the second sum. I am rubbing it. So what is given in the second question? Let's see students. Second question में क्या दिया है? They have said second question में कि measure of an arc is 80 centimeter. That is given. Measure of an arc is 80 centimeter. Okay. And its radius is 18 centimeter. Find the length of the arc. Okay. Find the length of an arc. ऐसे क्वेश्चन में हाँ right. It is not 80 degree students. It is 80. Measure of an arc of a circle is 80 degree है वो. And its radius is 18 centimeter. Find the length of the arc. So theta इसमें given है that is equal to 80 degree. And जो radius है वो that is given is 18 centimeter. Pi का value same they have said to take 3.14 and we have to calculate length of an arc. We have to calculate what length of an arc. We have to find length of an arc. So see, while solving the solution, what we are writing, the length of an arc, length of an arc is given as theta upon 360 into 2 pi r. This is मेरा length of the arc का formula. That is theta upon 360 into 2 pi r. Theta is given as 80 degree, right? Pi की जो वैल्यू है वो कितनी बोली है 3.14 and radius students they have given as 18. The radius they have given as 18. अभी देखो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं क्या करूंगा 1 0 कट कर दूंगा। यहाँ पे देखो 18 1 जा 18 18 2 जा 36. So I am left out with what 8 multiplied by 2 multiplied by 3.14 divided by 2. So 2 1 जा 2 2 1 जा 2. So I am left out with how much 8 multiplied by 3.14. बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं इसमें, खाली तुमको टेबल अच्छे से आने चाहिए। अभी देखो स्टूडेंट 8 4 जा 32 3 कैरी 8 1 जा 8 9 10 11
1 carry up, 8 3s are 24, 25. So एक दो के बाद पॉइंट, एक दो के बाद पॉइंट, that is equal to 25.12, that is 25.12 centimeter square or sorry centimeter. It is nothing but the area of length of an arc, right? So length of the arc is nothing but 25.12 centimeter. That is length of an arc is nothing but 25.12 centimeter. Length of an arc is nothing but 25.12 centimeter. So students, please take a note of it. Fast pause करके नोट कर सकते हैं. इसमें कुछ भी डाउट है, you can ask in the comment section. We are open to solve any kind of problem. Okay, so now I will be solving the question third one. So what is third one, student? Let's see. They have given the radius of the sector of a circle is 3.5 centimeter. So students, what is the given data? Let's put on. The radius of the circle is nothing but 3.5 centimeter. Length of the arc given is nothing but 2.2 centimeter. Length of an arc, length of arc is given as 2.2 centimeter. Radius is and they have said to calculate the area of sector. So student, मैंने रिलेशन बताया था तुम लोग को. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस. सो रिलेशन बिटवीन, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस एंड डिवाइड बाय 2. मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइड बाय 2. So what is the length of the arc? They have given as 2.2. What is the radius? They have given as 3.5 and divide by 2. So students, बहुत simple है. देखो 2 1s are 2, 2 1s are 2.1. 1.1 will be the answer. 2 से divide कर लो, simple है. We will left out with 1.1 multiplied by 3.5. Right? So यहाँ पे multiply कर लेंगे. 1 5s are 5, 1 3s are 3. 1 5s are 5, 1 3s are 3. So add करेंगे 5, 8, 3. 1.2 पॉइंट, 1.2 पॉइंट, 3.85. 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर will be my area of sector. सिंपल है. फॉर्मूला क्या है देखो स्टूडेंट. Area of sector is equal to length of an arc multiplied by radius divided by 2. Length of the arc कितना दिया 2.2 और radius कितना दिया 3.5 divided by 2. So 2 1s are 2, 2 1s are 2.1. 22 का आधा करेंगे कितना आता है? 11 आता है, राइट? बीच में पॉइंट है इसलिए 1.1 आ जाएगा आंसर. बहुत सिंपल सम्स है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. So students, we will be solving the next sum, that is numerical number 4. So what is numerical number 4? That is radius of the circle is given as, I will write down the given data first. Given is nothing but the radius of circle R is given as 10 centimeter. Area of sector is given as
is given as 100 centimeter square and what we have told pi का वैल्यू दिया है 3.14 and students they have said to calculate the value of area of major sector. They have said to calculate the value of major sector to find area of major sector. So थोड़ा भी इसमें मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, जरा अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स। ये देखो अभी ये है ना मेरे पास एक सर्कल है, राइट। अभी ये एक सेक्टर दिया है जो कि पता नहीं है मेजर है या माइनर है, बट सिंस क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो ये अगर मेजर सेक्टर है तो जो गिवन डेटा इज नथिंग बट द माइनर सेक्टर। तो मैं एक अज्यूम करता हूं अगर ये मेरा पूरा सर्कल का अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है, बराबर, सो दिस इज नथिंग बट मेरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब सबसे बड़ा सेक्टर जो होगा वो मेरा एरिया ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं ये वाला गिवन सेक्टर माइनस करता हूं तो मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिलेगा। समझा क्या? फॉर एग्जांपल जब हमने कंसेप्ट्स किए थे एरिया ऑफ सेक्टर के, तभी मैंने आपको एक वैल्यू बताया था दैट इज θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर खाली कब बचेगा? जब θ360 होगा, मतलब पूरा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तभी ये बचेगा। समझे क्या? तो सबसे मेजर वाला एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? जब उसका थीटा का वैल्यू क्या होता है? 360 होता है, मतलब पूरा सर्कल होता है। तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं कुछ सेक्टर माइनस कर दूं, सो आई विल बी गेटिंग द रिमेनिंग सेक्टर एरिया। इज दैट क्लियर? सो अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे सम? देखो बहुत सिंपल है वाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज नथिंग बट, उसके पहले हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन करेंगे दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू है वो कितनी है? 3.14 है, इनटू रेडियस 10 इनटू 10 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 10 into 10 लिख सकता हूँ। 10 का स्क्वायर को मैं 10 into 10 लिख सकता हूँ। सो जो मेरा आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा? 314। दो जीरोस को आगे शिफ्ट कर दूंगा मैं। सो एरिया ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स ये मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल का जो मेरा एरिया आया है वो कितना आया है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। मुझे एक एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है जो कि मेरा माइनर सेक्टर है। तो अभी स्टूडेंट्स देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। Area of circle minus area of minor sector. Area of circle is nothing but 314 minus area of minor sector is 100. तो 314 में से 100 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये मेरा होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। समझे क्या? अगर पूरे सर्कल का अगर सेक्टर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर लो, वैल्यू डालो। उसमें से अगर कुछ वैल्यू मुझे निकालना है तो क्या करो? उसको माइनस कर दो जो गिवन है वो, तो हम लोग को रिमेनिंग सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो फटाफट सब नोट कर लो। So students, we will be solving with the next sum, that is question number 5 of exercise 7.3. Can you please just read the question? Question
रीड करना बहुत जरूरी है, ओके, और एल्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 5 दे हैव सेड व्हाट दे हैव सेड कि area of the sector of the circle with radius 15 centimeter is 30 centimeter square. मतलब एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो कितना है, एक रेडियस ऑफ सर्कल जिसका 15 सेंटीमीटर है उसका एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट विच इज इक्वल टू कितना है, area of sector is 30 centimeter square and radius of circle is nothing but 15 centimeter and radius is nothing but 15 centimeter. So students, what they are said to calculate, they are said to find me the value of length of an arc. So what is the length of an arc? फाइंड आउट करना है, राइट. तो हम लोग को पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस and divide by 2. This is my formula. This is the relation between the length of the arc and the area of the sector. Okay. So मुझे length of the arc find out करना है students. So length of the arc is equal to area of sector, तो यहाँ पे रहेगा ही, right? अब ये जब 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में दूसरे साइड में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या करेगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन में. सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर मुझे कितना दिया है 30 दिया है, ये 2 है और जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है स्टूडेंट 15 दिया है, राइट. अभी 15 का टेबल आता रहेगा तो सीधा कट आउट करना है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. अगर नहीं आता है तो 5 के टेबल से डिवाइड कर लो, राइट. सो आंसर बचेगा 2 into 2 which is equal to length of an arc. So 2 2 जा क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 2 जा आता है 4 सेंटीमीटर. सो मेरा लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा. क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा किसका, लेंथ ऑफ एन आर्क. सो लेंथ ऑफ एन आर्क इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके. प्लीज नोट कर लो, नोट करो अच्छे से. So students, we are going to solve with the next sum. Okay. तो देखते हैं नेक्स्ट सम में क्या दिया गया है. नेक्स्ट सम इज ऑफ 6th नंबर, राइट. 5th हो गया था अभी. तो 6th सम में क्या दिया स्टूडेंट्स, एक फिगर दिया मुझे. That is in figure the radius of the circle is given as 7 centimeter and measure of arc MBN is 60 degree, right. अभी देखो एक सर्कल दिया है मेरे पास जिसमें मुझे एक आर्क दिया है जिसकी वैल्यू है MBN और ये दिया है 60 डिग्री, राइट. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो स्टूडेंट्स ये जो मेजर ऑफ आर्क होगा MBN वो भी 60 डिग्री होगा, राइट. और ये C पॉइंट यहाँ पे दिया, राइट. सो दे हैव गिवन रेडियस एज 7 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ आर्क MBN they have given it as a 60 degree and they are said to find area of circle, first one, that is area of circle
Next you have said to calculate area of sector OMBN, and they have next said to calculate area of OMCN. Students, very simple. Okay, so let's start with this sum. Okay, I will be solving here solution. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सिंपल है, राइट? हम लोग को कैसे सॉल्व करना है? देखो, ये जो एंगल दिया है ये कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। मतलब ये आर्क का मेजर कितना होगा? थीटा के टर्म्स में 60 डिग्री होगा, राइट? तो सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल पूरा निकाल के मैं क्या करूंगा बाद में? वो एरिया को एरिया ऑफ OMBN सेक्टर से माइनस कर लूंगा, राइट? पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये जो हैश पे बना रहा हो इसका एरिया अगर माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोग को OMCN मिल जाएगा। तो इसी वे में हम लोग को तीनों जो डेटा जो फाइंड आउट करने बोले हैं वो मिल जाएंगे। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करता हूं एरिया ऑफ सर्कल। So student, what is my area of circle? It is nothing but pi r square. रेडियस मुझे कितना दिया है? 7 दिया है। सो पाई की वैल्यू में कितना सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? 22/7। रेडियस कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर पे कैसे लिख सकता हूं? 22/7 तो लिखूंगा ही, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहां से डिवाइड कर लूंगा, एक 7 निकालूंगा, एक 7 निकालूंगा, 7 1 7 7 7 7 1 7। सो बचेगा कितना मेरे पास? 22 मल्टीप्लाई बाय 7। सो यहां से मुझे एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 2 14, 1 कैरी ऑफ 7 2 14 प्लस 1 15, दैट इज 154। दैट इज एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा स्टूडेंट? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या फिर यू कैन राइट स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों यूनिट चलते हैं, राइट? क्लियर है? एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। अभी मैं नेक्स्ट डेटा कैलकुलेट करूंगा, दैट इज एरिया ऑफ OMBN, दैट इज इक्वल टू माइनर सेक्टर है होगा, राइट? एरिया ऑफ OMBN। सो OMBN जो एरिया है वो मेरा क्या आ जाएगा? दैट इज थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर। अभी देखो थीटा की जो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 60 दी है, डिवाइड बाय 60 दी है। पाई r स्क्वायर स्टूडेंट्स यहां पे अगर तुम देखोगे तो ऑलरेडी हम लोग ने पाई r स्क्वायर का वैल्यू क्या किया है? 154 निकाल लिया है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अभी देखो यहाँ पे 1 से डिवाइड 0 से 0 गया, यहाँ से 0 से 0 गया, 60 और 1 360 में से एक 0 गया। अभी देखो 6 के टेबल पे जोड़ हो जाते हैं, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। तो जो मेरी वैल्यू आई वो कितनी आई? 154 डिवाइड बाय 6। अभी मुझे इसको डिवाइड करना है 154 को 6 में से, तो मैं यहाँ पे सिंपली डिवीजन करूंगा, दैट इज इक्वल टू 6 2 जा 12। मेरे पास बचेगा कितना? 5 में से 2 गया, 3 बचा, 4 नीचे आया। अभी मुझे पता है 6 5 जा क्या आता है? 30 आता है, तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा सीधा। 4 बेसिक डिवीजन है, यहाँ से 0 नीचे आ जाएगा, एक डॉट लग जाएगा, कितना आता है? 6 जा 36। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, कंटीन्यूअसली आते जाएगा, 25.6666 गोज ऑन। सो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट मेरा एरिया ऑफ OMBN, एरिया ऑफ OMBN which is equal to 25.66 centimeter square, that is 25.66 centimeter square। क्लियर है क्या? वेरी गुड, राइट? अभी नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बचेगा क्या है मेरा जो कैलकुलेट करना है? आई हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ OMCN। सो एरिया ऑफ OMCN is nothing but, अभी देखो ये एरिया तो मुझे मिल गया है OMBN का, कितना है? That is nothing but 25.66। अभी मेरा बचा एरिया कौन सा है? ये पूरा एरिया मेरा बचा हुआ है, राइट? तो ये मैं कैसे करूंगा? पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनस करूंगा, that is एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ OMBN।
एरिया ऑफ सर्कल मेरा 154 है माइनस 25.66, तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे इसका एरिया, दैट इज इक्वल टू 154 माइनस 25.66। तो देखो यहाँ पे ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 4। 10 में से 6 गया, कितना बचा, दैट इज इक्वल टू 4। 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3। यहाँ से 4 में से 14 में से 13 में से 5 गया, कितना बचा, दैट इज इक्वल टू 8, एंड 4 में से 2 गया, बचा 2। सो मेरा पास बचा हुआ वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 128.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट मेरा एरिया ऑफ OMCN, दैट इज एरिया ऑफ OMCN। स्टूडेंट्स मेरा क्या आ गया है, 128.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माय एरिया ऑफ व्हाट, OMCN। इज दैट क्लियर? ये देखो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ पूरे सर्कल का फाइंड आउट करने बोला, तो मैंने सॉल्व किया एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बाद में मुझे एरिया ऑफ OMBN मतलब माइनर सेक्टर कैलकुलेट करने बोला है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद मुझे बड़ा मेजर सेक्टर कैलकुलेट करने बोला, दैट इज एरिया ऑफ OMCN। तो अभी एरिया ऑफ OMCN कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया दैट इज पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ये छोटे सेक्टर के एरिया। ओके क्लियर है, बहुत सिंपल है, नोट डाउन कर लो फटाफट, प्लीज नोट डाउन फटाफट। So students, let's solve the next sum, which is question number 7. Okay, क्या दिया है देखते हैं। So what is given in question number 7, right? So what is question number 7? Let's solve. It has given in the figure radius of the circle is given as 3.4 centimeter. That is, I will write the given data. Radius is given as how much? 3.4 centimeter. 3.4 centimeter. And perimeter of sector PABC is given as 12.8. That is, perimeter of sector ABC is given it as 12.8 centimeter. Okay, and they are said to find that is area of sector A, मतलब क्या होता है, area of perimeter of ABC, right? So देखो perimeter उन्होंने दिया है, that is perimeter PABC। P सेंटर में है, A B C, राइट? कितना दिया है, दिया है 3.4 सेंटीमीटर रेडियस, राइट? सो अभी देखो स्टूडेंट्स, हम लोग को ये सम कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सम है, राइट? सो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए देखो पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ PABC, that is perimeter of PABC is nothing but कोई भी सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है ना स्टूडेंट सर्कल के अंदर का, तो वो क्या होता है, दोनों रेडियस का एडिशन होता है, that is PA plus PC plus length of an arc। क्या बोला मैंने, PA plus PC plus length of an arc।
अभी पेरीमीटर कितना दिया है मुझे 12.8 दिया है, रेडियस कितना दिया है 3.4 दिया है, और एक रेडियस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अभी देखो 3.4 प्लस 3.4 कितना होता है 6.8 होता है, प्लस लेंथ ऑफ आर्क, राइट। सो यहां से मुझे लेंथ ऑफ आर्क क्या मिल जाएगा 6.8, दूसरी साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, 12.8 माइनस 6.8 विच इज इक्वल टू 12 में से 6 गए कितने बचे स्टूडेंट 6 बचे। सो लेंथ ऑफ द आर्क जो मेरा होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू हाउ मच 6 सेंटीमीटर। बट मुझे लेंथ ऑफ द आर्क निकालने बोला है क्या, नहीं, मुझे क्या निकालने बोला है, एरिया निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, एरिया निकालने बोले किसका, एबीसी का। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज नथिंग बट लेंथ ऑफ एन आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, रेडियस डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए लेंथ ऑफ द आर्क मुझे कितना है 6 सेंटीमीटर, राइट, कितना है 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आया है, दिया है 3.4 सेंटीमीटर, और ये सिंपल है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.4। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 3 जा 9, 10, एक पॉइंट बचा इतना। सो आंसर क्या आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेरा एरिया ऑफ PABC। सिंपल है क्या। सबसे पहले देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, दोनों रेडियस जो सेक्टर के अंदर है प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, सबको एडिशन कर लो, दैट इज एक रेडियस दूसरा रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। तो मुझे ऐसे लेंथ ऑफ द आर्क पता नहीं है तो लेंथ ऑफ द आर्क मिलेगा, फिर मेरे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। सो वहां से मुझे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, प्लीज नोट कर लो फटाफट, फास्ट एकदम। डन। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। पॉज करके नोट कर लो, आई विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। So what is the next sum given? See, that is question number 8. So what is question number 8 given? In the figure 7.33, O is the center of the sector, that is figure 7.33, sorry, figure 7.33. O is the center of the sector, ROQ is equal to angle MON is equal to 60 degree, and OR is given as 7 centimeter and OM is given as 21 centimeter. So they have sent to find the length of the arc RSQ and arc MYN. बहुत simple sir. So I will just draw the given figure. Okay. So students यहाँ पे देखो, ये मेरा O है, ये R है, और ये है X, ये है Q, M, Y, और ये है एंगल कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। सो आई विल राइट डाउन जस्ट गिवन डेटा फॉर योर कंफर्मेशन, ओके। सो एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल MON इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया है स्टूडेंट, 60 डिग्री दिया है, राइट। OR इज इक्वल टू कितना दिया है, OR इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर दिया है। OM कितना दिया है, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया, एंड पाई की वैल्यू दे हैव सेट टू कैलकुलेट 22/7। सो देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है ये टाइप के सम्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें ये जो कैलकुलेट उन्होंने करने बोला है, दैट इज फाइंड करने बोला है, टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क RXQ
and measure of arc MYN। बहुत सिंपल है। तो पहले ये प्रूव करने के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा कि जो थीटा है दैट इज आर लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट। सो मींस लेंथ ऑफ एन आर्क मींस दैट इज आवर डिग्री, दैट इज मेजर ऑफ एन आर्क, राइट। सो इन्होंने हम लोग को ये कैलकुलेट करने बोला है कि मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन हमें क्या करने बोला है, हमें फाइंड क्या करने बोला है। देखो स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने बोला है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एंड MYN, इनका हम लोग को लेंथ कैलकुलेट करने बोला है। तो ये टाइप के सम्स बहुत सिंपल होते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकता हूँ दैट इज जो मेरा मेजर ऑफ आर्क, ये जो आर एक्स क्यू है दैट इज आर एक्स क्यू है, ये किसके बराबर है, मेजर ऑफ एंगल आर ओ क्यू के बराबर है, जो कि कितना होगा 60 डिग्री होगा, राइट। बिकॉज जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है उसका वैल्यू आर्क के बराबर होता है, राइट। और नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकता हूं मेजर ऑफ आर्क MYN इज नथिंग बट मेरा मेजर ऑफ एंगल MON which is equal to also 60 degree। so now I know the value that is ये क्या है मेरा, this is nothing but मेरा थीटा, ये भी क्या है मेरा थीटा। so I can directly write length of the arc, student length of the arc is nothing but कौन सा वाला r x cube is nothing but length of the arc r x cube is nothing but theta upon 360 multiply by 2 pi r, that is theta upon 360 multiply by 2 pi r। so what is the value of theta I am getting 60 degree, right। अभी जो 2 है वो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना दिया है, रेडियस किसका आर एक्स क्यू का रेडियस कितना दिया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर का रेडियस दिया है ओआर का, राइट। सो यहाँ पे 7। अभी देखो स्टूडेंट 7 से 7 कट हो जाएगा, 6 से 0 से 0 कट हो जाएगा। अभी देखो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, क्लियर है क्या, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अभी देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 22 डिवाइड बाय 3। सो यहाँ पे 22 को 3 से डिवाइड कर लो, क्या आता है दैट इज नथिंग बट 3 7 जा 21, बचा कितना 1 बचा 0 आया, पॉइंट डाला 3 3 जा 9। सो देखो स्टूडेंट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, ये आते जाएगा 3 जितने बार भी करोगे तो डायरेक्टली आई कैन राइट 7.33 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स ऐसा आई विल कंक्लूड दैट लेंथ ऑफ माय आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क कौन सा आर एक्स क्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7.33 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट मेरा लेंथ ऑफ एन आर्क। क्लियर है क्या, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क इज नथिंग बट 7.33 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ एन आर्क इज नथिंग बट 7.33 सेंटीमीटर। So student, now you can directly calculate the value of length of an arc MYN। So length of the arc MYN तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। So कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी बहुत सिंपल है, राइट। क्या करोगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। अभी जो आर्क है उसका रेडियस लेंगे, ना कि जो प्रीवियस वाला रेडियस। पहले वाला जो रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर था, राइट। ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूं, राइट। सो अभी यहाँ पे देखो length of an arc, that is length of an arc MYN is equal to theta upon 360 multiply by 2 pi r। r रेडियस किसका वाला OM वाला, बड़े वाले r का रेडियस। सिंस हम लोग रेडियस अगर ये सर्कल ऐसे पूरा बनाएंगे तो ये पूरा सर्कल ऐसे बन जाएगा, तो वो रेडियस लेंगे हम लोग। सो थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 60 है, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस दैट इज नथिंग बट कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है क्या वहां पे, यस 21 सेंटीमीटर। सो देखो 0 0 कट हो गया, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। अभी देखो यहाँ पे 6 1 जा 6,
6 6 are 36. So I pick 2, 22 multiplied by 3 divided by 6. अभी और सिंपल, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So I am left out with 3 1s are 3, 3 1s are 3. So we are left out with only 22. So length of the arc is nothing but 22 centimeter. So length of the arc MYN is nothing but 22 centimeter. So final answer you have to write the length of the arc RXQ is equal to 7.33 centimeter and the length of the arc MYN is nothing but 22 centimeter. एरिया है तो उसका यूनिट स्क्वायर में आएगा, अगर लेंथ ऑफ एन आर्क है तो उसका यूनिट कितने में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट जस्ट प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट फास्ट. So students, let's start with the next sum, that is sum number 9. So let's start with question number 9. So we'll see what is given in the question. Okay, is it focusing? Yes. So question number 9. So what is given in the question? They have given area of PABC, that is area of sector PABC. Area of PABC. It is given as how much? It is given as 154 centimeters square. Very good. And radius of the circle is given as 14 centimeter. They have said you have to find out, first one angle ABC and second one length of arc ABC. एक सर्कल दिया है, okay, A B C and this center is P. ठीक है, बहुत सिंपल सम है स्टूडेंट्स, देख लो अच्छे से कैसे सॉल्व करना है. ओके, अभी देखो इसमें क्या बोला है, सॉल्यूशन पे जाते डायरेक्ट. बोला है एरिया दिया है, कौन से सेक्टर का, PABC का एरिया दिया है, जो कि कितना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर PABC इट इज नथिंग बट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. रेडियस गिवन है 14 है, राइट. तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो मुझे एंगल APC फाइंड आउट करना है. एंगल कौन सा बोला है, APC, मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है, which is equal to, मैं थीटा लिख देता हूँ इसको, राइट. अभी एंगल APC is nothing but measure of arc ABC, yes, which is equal to, मैं इसको नाम देता हूँ थीटा, राइट. एरिया मतलब एंगल APC is nothing but measure of arc ABC which is nothing but theta. अभी मेरे पास फॉर्मूला है, that is area of sector PABC is nothing but theta by 360 into pi r square, theta upon 360 into pi r square. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर PABC मुझे पता है, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. थीटा मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं थीटा को थीटा ही रखूंगा, एंड डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जो वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो गिवन है 14 का स्क्वायर, मतलब 14 into 14 आके स्ट्रेट अवे रखेंगे, राइट. तो अभी मैं क्या करूंगा, ये पूरे टर्म्स को दूसरे साइड पे लेके जाऊंगा. तो 154 के साथ क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, उसके साथ 7 आ जाएगा, और बाकी के टर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14. इज दैट क्लियर? इतना समझा है क्या? दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r स्क्वायर. तो दिस इज नथिंग बट थीटा की जो वैल्यू है वो हम लोग को कैलकुलेट करनी है. तो अभी देखो यहाँ पे मैं कैंसिल आउट करूंगा. कैसे कैंसिल आउट करूंगा, 7 1 जा क्या आता है, 7 आता है, 7 2 जा क्या आता है, 14 आता है, राइट. इसको और मैं सिंपलीफाई करूंगा 2 से, 2 1 जा 2,
2 7 जा 14, 1 कैरी फिर से 2 7 जा 14। अभी ये वैल्यू में स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर जाके, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या बचता है 77 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय नहीं 360 डिवाइडेड बाय क्या क्या बचता है 22 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय हो गया, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे 11 के टेबल में क्या जाएगा, ये टर्म जाएगा, दैट इज 11 2 जा 22 11 7 जा 77 गया, ये बहुत सिंपल है, राइट। अभी देखो बचेगा क्या 7 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 2 into 14, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, क्लियर है। 7 1 जा 7 7 2 जा 14। सो बचेगा क्या 360 डिवाइड बाय 2 2 जा कितना आता है 4 आता है। बोलो क्या सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, बच्चे वीक होते कोई कोई उनको पता नहीं होता, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। सो देखो 4 1 जा 4 4 9 जा 36 0 बच गया। सो ये क्या आ जाएगा 90 आ गया। सो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्रीज आ गई, कितनी आ गई 90 डिग्रीज आ गई। अभी थीटा इज नथिंग बट मेरा क्या है, थीटा इज नथिंग बट मेरा क्या है एंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना डिग्री आया 90 डिग्री आया। सिंपल है क्या, बहुत सिंपल है भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें, राइट। अगर कुछ भी डाउट्स है तो स्टूडेंट्स यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड, पक्का गारंटी के साथ। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क के लिए फिर से एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करो, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय व्हाट रेडियस डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 154, लेंथ ऑफ द आर्क कितना है पता है क्या, नहीं स्टूडेंट्स हमको लेंथ ऑफ द आर्क नहीं पता है। रेडियस कितना है, रेडियस इज नथिंग बट 14 और ये 2, सीधा उधर लेके जाओ डिवाइड कर लो, 154 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 14, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क। अभी देखो ये इसको नहीं आता तो थोड़ा भाई मैथ्स करना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में भागेगा, ये 14 न्यूमरेटर में दूसरे साइड में आएगा तो डिनोमिनेटर में। अभी देखो 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, इतना क्लियर है। सो बचेगा कितना 154 डिवाइड बाय 7 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। अभी देखो सिंपल इसको भी डिवाइड कर लो, अगर डिवीजन नहीं आता तो यहाँ पे देखो 154 7 राइट, 7 2 जा 14, 1 बचा 4 नीचे आया 7 2 जा 14, वही आ गया 22, राइट। आंसर क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, व्हिच इज व्हाट लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क, व्हाट आर्क क्या है ए बी सी, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी, ये फाइंड आउट करने बोले, राइट। सो प्लीज नोट डाउन, फटाफट नोट कर लो ये सब, ओके। अगर तुमको कुछ भी डाउट्स है तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछो, है ना, यस। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व विद द न्यू सम, जो कि सम नंबर 10 है। क्या दिया जरा क्वेश्चन में पढ़ लो तुम, ओके। मैं तो पढ़ूंगा ही, सॉल्व भी करूंगा। देखो क्या दिया नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, इसमें बोला है दैट इज सम नंबर 10 व्हिच इज गिवन एज दैट इज radius of the sector of a circle, it is given as radius is given as 7 centimeter. They are said to calculate area of sector for 3 conditions they have given. First one they have given 70 degree, they have given first is given as 30 degree, second they have given as 210 degree, and third they have given as 3 right angles. Okay, now we will solving this.
बहुत सिंपल है। देखो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर जो बोला है उन्होंने, राइट, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं पहले वाले का। ओके स्टूडेंट, सो देखो उन्होंने क्या बोला है, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर बोला है पहला वाला कैलकुलेट करने के लिए, तीनों के लिए भी। सो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, फॉर थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री बोला है, 30 डिग्री। कितना आएगा फॉर्मूला फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या आता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री दी है, ये 36 है। पाई की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी लेंगे हम, 22/7 लेंगे। कितनी लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू दैट इज 7 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 7 into 7। अभी देखो 0 से 0 गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सॉरी 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर है? सो आई एम लेफ्ट आउट विद हाउ मच, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12। अब ये फर्दर 2 से जाता है तो 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। Clear है? Then further it also get divided, that is 11 into 7 divided by 6, that is equal to 737 divided by 6। तो 77 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो बचेगा क्या, 6 1 जा 6, बचा कितना 1, 7 नीचे आया तो 6 2 जा 12, बचा कितना, 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5 बचा, नीचे आया पॉइंट आया, 8 जा 48, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, 0 आ गया, फिर 3 जा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो वैल्यू कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर फॉर हाउ मच डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर 30 डिग्री। कितने डिग्री के लिए है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर फॉर हाउ मच डिग्री, 30 डिग्री। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर हाउ मच, इट इज नथिंग बट 30 डिग्री। Now for which area of sector they have said to calculate, अच्छे से करना स्टूडेंट्स, कुछ भी गलती मत करना इसमें, कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग को क्या बोले, सेकेंड वन, they have said to calculate area of sector for theta is equal to how much degree, for theta is equal to 210 डिग्री, 210 डिग्री के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को बोले। तो how we will calculate, that is theta upon 360 multiplied by pi r square, multiplied by pi r square। थीटा की वैल्यू कितनी है, 210 है, 360 है, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 into 7, रेडियस की वैल्यू 7 into 7। तो अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे आएगा, एक 0 से दूसरा 0 गया, 7 से 7 गया, सो वी विल बी लेफ्ट आउट विद 21/36 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी देखो 21 और 36 दोनों भी 3 के टेबल से जाते हैं, 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सिंपल है, यस। सो बचेगा कितना, 7 22 एंड 7 डिवाइड बाय 12। ये भी सिंपल है, देखो कैसे जाएगा, 6 जा 12, 11 जा 22, राइट। लेकिन 11/22 11 into 7 करेंगे तो 77 आ जाएगा, into 7 डिवाइड बाय 6। ये क्यों किया मैंने, बिकॉज़ देखो 11/6 जो हम लोग ने किया था उसका आंसर हमको ऑलरेडी आया था, दैट इज 12.83। अब इसको ही मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो ऐसे हम लोगों को कैलकुलेशंस को सिंपल करने हैं, दैट इज इक्वल टू 7। तो 7 3 जा 21, 2 कैरी अप, 8 7 जा 56, 57 58, 5 कैरी अप, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 1 कैरी अप, 7 1 जा 7 8, 2 पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट के आ जाएगा, दैट इज वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 89.81। क्या आ जाएगी वैल्यू, 89.81। दिस इज व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर, and this is what मेरा area of sector when theta is equal to how much degree, 210 डिग्री। जब 210 डिग्री होगा तो area of sector कितना आ जाएगा, area of sector आ जाएगा मेरा that is 89.81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 89.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दो वैल्यूज हमने निकाल ली है।
अभी थर्ड वैल्यू हमें निकालने के लिए और एक स्टेप करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पे ही कर लेता हूँ, राइट नीचे दैट इज 3 राइट एंगल स्टूडेंट्स। अभी देखो स्टूडेंट्स 3 राइट एंगल मतलब क्या होते हैं? 3 राइट एंगल्स मतलब होते हैं 3 into 90 डिग्री। अभी 9 डिग्री का कितना होता है? 27, मतलब 270 डिग्री के लिए हम लोग को क्या बोला है? वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली। सो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, सीधा मैं फार्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, that is equal to theta upon 360 multiplied by pi r square, multiplied by क्या है? pi r square। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 270 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी दी है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय जो रेडियस दी है वो कितना दी है? 7 into 7। देखो अभी 7 से 7 क्या करूंगा? कट करूंगा। 0 से 0 क्या करूंगा? कट करूंगा। 9 3s are 27, 9 4s are 36, right? So I will be left out with 3 multiply by 22 multiply by 7 divide by 4। देखो 2 से जाएगा, ये कितने से जाएगा? 11 से जाएगा। So देखो 11 7 are 77, okay? 11 7 are 77 divide by 2। अभी देखो 17 7 3s are 77 3s are कितना आता है? 77 3s are कितना आता है? 231 आता है, right? 77 3s are कितना आता है? 231 आता है और डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो 230 का आधा कितना? 200 का आधा कितना होता है? 200 का आधा कितना होता है स्टूडेंट? 100 होता है। 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है। सो ये बचेगा कितना? 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, दैट इज 115.5 centimeter square will be area of sector when theta is equal to how much degree? 270 degree। when theta is equal to how much degree? 270 degree, that will be my area of sector। okay, just calculate। so students we will solve the next sum। okay, ये pause करके नोट कर लो फटाफट। तो अभी देखो स्टूडेंट नेक्स्ट सम में क्या दिया है? नेक्स्ट सम में क्या दिया है? दैट इज सम नंबर 11। दे हैव गिवन व्हाट? सो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट सम में क्या दिया है हम लोग को? दे हैव गिवन दैट इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज गिवन, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to area of minor sector is equal to 3.85 centimeter square and measure of its central angle, that is theta की वैल्यू कितनी दी है? 36 डिग्री दिया है। so they are saying please calculate radius, that is they are saying to find radius of the circle, that is radius r of the circle। बहुत सिंपल सम है स्टूडेंट्स। अभी देखो इसको कैसे करना है, सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। अभी देखो सॉल्यूशन देखो, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का स्टूडेंट जो फॉर्मूला है वो क्या है? दैट इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय क्या है? पाई आर स्क्वायर। अभी देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया कितना दिया है? 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है? 36 डिग्री, राइट? और ये 36 डिग्री और डिवाइड बाय 360। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 22/7 इनटू r स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय 22/7 इनटू r स्क्वायर। अभी देखो ये टर्म्स उधर चले जाएंगे तो 3.85 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 22।
is equal to how much? Is equal to radius of the circle, which is equal to r square, right? So now we will cancel out here, right? How we will cancel out? See, 36 ones are 36, 36 tens are 360, 36 ones are 36, 36 tens are 360, right? So now we will write 3.85 multiply by 10 multiply by 7 divided by 22. Okay, divided by 22. सी यहाँ पे 22 है, यहाँ पे कितना है 3.85, राइट? तो अभी देखो 3.85 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी वैल्यू कितनी आती है? मेरी वैल्यू आती है 38.5। अगर 3.85 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं मेरी वैल्यू आती है 38.5। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 से और डिवाइड करूं 22 से, which will be मेरा r स्क्वायर का वैल्यू। अभी अगर तुम अच्छे से नोट करोगे तो ये 22 है, ये कितना है 38.5। दोनों भी 11 के टेबल में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये देखो 22 को रेड्यूस कर दो 11 के, रेड्यूस कर दो, डिवाइड बाय 11 कर दो तो ये बन जाएगा 11 जा, राइट? या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, इसको ये 22 है, सीधा 11 के टेबल से डिवाइड कर लो, 11 2 जा 22। क्या करोगे? 11 2 जा 22। और ऊपर वाला है, इसको 11 से डिवाइड करके देखो 38.5 को, राइट? तो 11 3 जा 33 आता है, राइट? एक में से 3 गया तो 5 बचता है, एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और ये 5 आ जाएगा। सो 11 5 जा 55। सो यहाँ से क्या बचेगा? 3.5 बचेगा। कितना बचेगा? 3.5। फिर ये देखो मेरे पास बचेगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2। फिर से देखो इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.5। अगर नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे करके देखो, दैट इज 2 डिवाइड बाय 7, दैट इज 2 3 जा 6, इसमें 1 बचेगा और ये पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? 5 जा 10 बन जाएगा। सो वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.5। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। सो मेरा r स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, राइट? तो जब ये रूट लगेगा तो इसमें से एक r निकल जाएगा तो मेरी रेडियस की वैल्यू क्या बचेगी? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगी। कभी जब इसका रूट निकल जाएगा तभी। सो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी रूट लगने के बाद, राइट? सो 2r है, दैट इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 है, तो इसमें से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। सो r की वैल्यू कितनी बचेगी? 3.5 बचेगी। सो प्लीज नोट डाउन ये वाला सम। This is nothing but the radius of the circle, right? So please note down. So student, now we will be solving the 12th sum. So we will be solving the 12th sum. देखिए 12th क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को. So this is the 12th sum we will be solving. We have given that is quadrilateral PQRS is a rectangle. Quadrilateral PQRS is a rectangle. So I will name it PQRS. It is a rectangle, right? So Q का एंगल 90 डिग्री है, SB 90, PB 90 and RB 90. 90 डिग्री यानी क्या? उनका सब एंगल्स कितना होता है? 90 डिग्री होता है, राइट? रेक्टेंगल मतलब तीनों चारों एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, राइट? अब इसमें जो PQ की वैल्यू गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर। एंड जो QR है स्टूडेंट उसकी वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर। और ये पार्ट्स को लोग ने ऐसे स्प्लिट किया है, दैट इज दिस इज पार्ट X एंड दूसरा पार्ट जो है वो उनका Y है एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो उनका Z है, राइट? सो सिमिलरली अभी उन्होंने फाइंड आउट वो करने बोला है, वी हैव टू फाइंड एरियाज ऑफ X, Y, Z. We have to calculate what? Areas of
x, y, z। तो अभी एरियाज ऑफ x, y, z हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट कि पहले हम लोग एक सेक्टर कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू सेक्टर P, M पॉइंट है शायद से ये, राइट। सो ये पॉइंट क्या दिया है क्वेश्चन में, कुछ दिया नहीं है। वी विल कंसीडर इट एज अ M, वी विल कंसीडर इट एज अ M, और इसको हम लोग n कंसीडर करते हैं। विल कंसीडर इट एज अ M और वी विल कंसीडर इट एज अ n। तो अभी देखो सेक्टर जो है हम लोग को कौन सा चाहिए, PM चाहिए, बिकॉज़ PM का हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी जो ये आर्क है उसका मेजर कितना होगा वी डोंट नो, बट थीटा हम लोग को पता है कितना है 90 डिग्री। अभी यहाँ पे कैसे होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन वाले पार्ट में, दैट इज एंगल PQM इज इक्वल टू मेजर ऑफ RPM which is equal to theta which is equal to 90 degree. So therefore area of x, that is area of sector x, will be equal to theta upon 360 multiply by pi r square। अभी देखो यहाँ पे PQ का वैल्यू और PM का वैल्यू कितना गिवन है, 14 गिवन है। कितना गिवन है, 14 गिवन है। PQ is equal to QM, राइट। सो अभी थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री है। 360 डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई विच इज इक्वल टू 22/7 इनटू रेडियस कितना दिया है PQ, दैट इज 14 इनटू 14, दैट इज 14 इनटू 14। देयरफॉर ये क्या है, एरिया ऑफ x, दैट इज एरिया ऑफ x, राइट। अभी देखो इसका डिवीजन में कैसे सिंपलीफाई कर दूंगा, 0 से 0 निकल गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, राइट। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अभी देखो 9/36 है ना, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। सो आई विल बी लेफ्ट आउट विद 22 into 2 into 14 डिवाइड बाय 4। अभी देखो इसमें क्या होगा, 2 1 जा 2 जाएगा एंड 2 2 जा 4 जाएगा, राइट। यहाँ पे फिर से 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, सो बचेगा कितना, 11 into 14, राइट। सो अभी मुझे क्या आ जाएगा, 14 10 जा 140 आता है, और 14 into 11 कितना आ जाएगा, 154। सो एरिया ऑफ x विल बी इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी व्हाट, मेरा एरिया ऑफ x। सो एरिया ऑफ x कितना है स्टूडेंट, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी व्हाट माय एरिया ऑफ x। x का एरिया कितना है स्टूडेंट, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो y का एरिया अगर कैलकुलेट करना है मुझे, तो मुझे एक तो डिस्टेंस mr का पता होना चाहिए या फिर nr का पता होना चाहिए, बिकॉज़ दैट विल बी द रेडियस फॉर दैट r mn, राइट। दैट विल बी द रेडियस फॉर एन आर्क mn। अभी देखो ये जो PQ है वही QM है, which is equal to how much, that is equal to 14। अभी टोटल QR कितना दिया है क्वेश्चन में, 21 सेंटीमीटर। सो QR किससे बना है, QM से बना है और MR से बना है। सो यहाँ पे जो QR होगा वो किससे बना है, QM से बना है प्लस MR से बना है। QM किससे बना है, QR किससे बना है, QM से बना है और MR से बना है। सो QR की वैल्यू कितनी है, 21, QM की वैल्यू कितनी है, 14, एंड MR की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है। सो 21 वहां पे जाएगा, 21 में से 14 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। सो MR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। सो MR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सेक्टर Y। सो अभी देखो एरिया ऑफ Y मैं सिमिलरली लिख सकता हूं, दैट इज एरिया ऑफ Y which will be equal to theta upon 360 multiplied by pi r square। सिंपल है। अभी देखो ये भी r के लिए, mn के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री है। सो थीटा कितना है, 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, दैट इज 22/7, और जो mr की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 7 into 7। 7 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 7 into 7 हम लोग लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 7 से एक 7 गया, एक 0 से दूसरा 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। सो विल बी लेफ्ट आउट विद 22 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4।
यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 जा 11 जा, सो बचेगा 77, 11 into 7 77 डिवाइड बाय 2। 77 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स? 38.5। कितना होता है? 38.5। दिस विल बी द फिक्स्ड वैल्यूज, तो तुमको ये याद रहना चाहिए, राइट? सो एरिया ऑफ मेरा y कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज व्हाट एरिया ऑफ मेरा y। एरिया ऑफ y कितना है स्टूडेंट्स मेरा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी व्हाट मेरा एरिया ऑफ y। तो स्टूडेंट्स अभी तुम अच्छे से देखोगे तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया है, y का वैल्यू मेरे पास आ गया है, तो अभी मुझे किसका वैल्यूज लाना है? अभी मुझे z का वैल्यू लाना है। किसका वैल्यू लाना है? z का वैल्यू लाना है। अभी z का वैल्यू अगर तुम देखोगे इट इज नॉट एन r, ये कुछ अलग ही डिजाइन टाइप में बना हुआ है, राइट? तो अभी इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो मैंने x का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, राइट? मैंने y का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अभी z का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक तो मैं पहले रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा। रेक्टेंगल के एरिया में से x प्लस y को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से x और y को मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे मेरा z का एरिया मिल जाएगा। सो प्लीज ये नोट डाउन कर लो, मुझे खाली एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट? सो ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट? सो देयरफॉर अभी मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? लेंथ कितना है मेरा? QR है, एंड ब्रेथ कितना है मेरा? PQ है। सो PR की वैल्यू, QR की वैल्यू कितनी है? 21, और जो PQ की वैल्यू कितनी है? 14। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 21 एंड 14। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 492। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 294 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका एरिया है? दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। दिस इज माय एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, दैट इज इक्वल टू कितना आया? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मुझे z का जब एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा एरिया ऑफ z इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल PQRS बराबर माइनस एरिया ऑफ x माइनस एरिया ऑफ y। क्लियर है? अभी देखो एरिया ऑफ PQRS कितना है मुझे? 294 माइनस एरिया ऑफ x कितना आया? 154 माइनस एरिया ऑफ y कितना आया? 38.5। सो अभी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? 294 में से पहले ये दोनों को ऐड कर लो, कितना होता है? 154 प्लस 38.5, ठीक है? ये 0.5 रहेगा, 4 प्लस 8 12 बनता है, 1 कैरी अप 9 1, तो 192 आया। तो 294 माइनस 192.5, तो ये क्या आ जाएगा? 192.5 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे, राइट? ये बचता है 3, ये बचता है इधर 0, 10 बचता है। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 9 में से 9 0, 2 में से 1 1, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट मेरा एरिया ऑफ सेक्शन Z, एरिया ऑफ Z। सो एरिया ऑफ Z विल बी कितना? 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी मेरा एरिया ऑफ Z। तो पहले मैंने x के लिए क्या कर दिया? थीटा मेरा 90 आ गया, राइट? y के लिए भी मेरा थीटा 90 आ गया। रेडियस इसके लिए 14 था, इसके लिए मेरा रेडियस मैंने 7 लिया, उससे मैंने x और y का एरिया कैलकुलेट किया। फिर मुझे z का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सिंपली टोटल एरिया लूंगा, उसमें से x और y को मैं माइनस कर दूंगा। सो आई विल बी गेटिंग द कंप्लीट वैल्यू फॉर द z। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस सम।